ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی ہمیں ہماری مصیبت میں اس دکھ میں ہمیں نکالنے والا ہو تو بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی نظر اچھے بہن بھائی بھی ہیں اچھے ماں باپ بھی ہیں اچھے بیٹے بیٹیاں بھی ہیں اچھے رشتہ دار بھی ہیں جو دوسروں کے لیے احساس رکھتے ہیں جو دوسروں کے لیے ان کے دکھ میں دکھی ہوتے ہیں جو ان کے دکھ میں ان کے مددگار بنتے ہیں لیکن اسی جگہ بہت سے ایسے ہیں جو دکھ کے وقت چھوڑ جاتے ہیں جو دکھ کے وقت نظر نہیں آتے یہاں سے یہ خیال اٹھتا ہے کہ انسان پر توکل جو ہے یا انسان پر بھروسہ کرنا جو ہے وہ غلط بات ہے کیونکہ انسان کا پتہ نہیں چلتا وہی انسان ایک وقت میں وفادار ہوتا ہے اور وہی انسان دوسرے وقت میں آپ سے بے وفائی کرتا ہے یہ دنیا کا اصول ہے یہ دنیا کا قانون جو میں نے اس دنیا میں دیکھا اور اپنے تجربہ سے جو مجھے جو ہے وہ سمجھ آئی وہ یہ ہے کہ انسان اعتبار کی چیز نہیں ایک ذات ہے جس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے جس پر بھروسہ ہم کرتے ہیں جس پر ہم پورا اعتماد رکھتے ہیں جس پر ہم اس بات کے لیے کامل طور پر کہہ سکتے ہیں کہ وہ کبھی ہم سے بے وفا نہیں ہوتا اور وہ ہمارا خدا ہے وہ ہمارا خدا ہے جب خدا ہمارے ساتھ ہوتا ہے نا تو وہی اچھے رشتہ داروں کو اچھے بہن بھائیوں کو اچھی اولاد کو ہمارے لیے مددگار کے طور پر کھڑا کر دیتے آج کا جو ہمارا مضمون ہے یا آج کا جو کلام ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں خدا کو پہچانیں ہم اپنی زندگی میں خدا کو دیکھیں اور اگر کہیں خدا ہمیں نظر آیا ہے ہماری گزشتہ زندگی میں خدا ہمیں نظر آیا ہے تو ہم اس خیال کو اس وقت کو اپنے سامنے لا کر خدا کی شکر گزار کریں کیونکہ میں تجربے سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ کی زندگی میں اور میری زندگی میں خدا ہمیں بے شمار بار نظر آیا اے چپ کر جو چپ کر اس بات کو دیکھنا ہے کہ خدا نے ہمارے لیے کیا کیا اور خدا ہمارے لیے کیا کر سکتا ہے ہم نے اس بات کو دھیان میں رکھتے ہوئے اپنے دلوں کو خدا کی شکر گزاری کے لیے کھولا یہاں پر جو زبور 94 میں نبی زبور کو تحریر کر رہا ہے اس گیت کو تحریر کر رہا ہے ایسا نظر آتا ہے کہ نبی شریروں میں گرا ہوا ہے شرارتی لوگوں سے اسے خطرہ ہے کیونکہ جو 16ویں آیت ہے اس میں یہ لکھا ہے کہ شریروں کے مقابلے میں کون میرے لیے اٹھے گا شریروں کے مقابلے میں کون میرے لیے اٹھے گا بد کرداروں کے خلاف کون میرے لیے کھڑا ہو یعنی نبی شریروں میں گرا ہوا ہے شریروں کی مخالفت میں گرا ہوا ہے اور اس مصیبت کے وقت میں اس دکھ کے وقت میں وہ کسی کو جو ہے وہ کسی کی مدد کا طلبگار ہے کسی کو دیکھ کہ کون میرے لیے اٹھے گا اکھیاں چکنا ہاں میں ول مدد لئی میں کس میں اپنی آنکھیں پہاڑوں کی طرف اٹھاتا ہوں میری امت کے لیے کون آئے ہماری زندگی میں بھی ایسے واقعات آتے ہیں کہ جب ہم شریروں میں گرے ہوتے ہیں جب ہم دکھوں میں گرے ہوتے ہیں جب ہم بیماریوں میں گرے ہوتے ہیں اور شریر کا تعلق ابلیس سے ہے یاد رکھیے شریر کہتے ہیں شرارت کرنے والے کو اور شرارت کرنا ابلیس کا کام ہے
और ये जो शरीर लफ्ज है ये भी इब्लीस के लिए इस्तेमाल हुआ है, शैतान के लिए, और वो अपनी टीम में ऐसे लोग शामिल कर लेता है जो ईमानदारों की मुखालफत करते हैं, ईमानदारों के लिए मुसीबतें खड़ी करते हैं, ईमानदारों के खिलाफ चलते हैं और ईमानदारों को गिराने के लिए वो मंसूबे बनाते हैं। सो यहाँ पर नबी क्योंकि शरीरों में घिरा हुआ है, शरीरों की सबब से उसकी मुखालफत है, वो किसी की मदद जो है वो देता है। और आगे मदद करने वाला कौन लिखा है, अगर खुदावंद मेरा मददगार ना होता तो मेरी जान कब की आलम खामोशी में जा बसी। यानी अगर खुदावंद मेरे दुख के वक्त में, मेरी मुसीबत के वक्त में, मेरी बीमारी के वक्त में, मेरे दुश्मनों के मेरे खिलाफ जो है मंसूबे बनाने के वक्त में अगर खुदावंद मेरा मददगार ना होता तो मैं हुन्नू कदों दा मर गया हूं। मेरी जान कब की आलम खामोशी यानी कब्र में जा बसी। आलम खामोशी कब्र की जगह। कब्रिस्तान के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल होता है ना, कब्रिस्तान होता है, और की कहते हैं किसी को पता है? गोरिस्तान भी कहते हैं, गोर कब्र को कहते हैं, गोरिस्तान कब्रिस्तान एक ही बात होगी। एक और लफ्ज भी इस्तेमाल होता है, शायद किसी को पता हो, शहर खामोशा। शहर खामोशा, खामोशी का शहर। आखिरी रामगा पर सब आखिरी रामगा, लेकिन जो मेरा मकसद है शहर खामोशा। शहर खामोशा जहां पर खामोशी बसती है, जहां पर हर तरफ वीरानी है, सुनसानी है। और यहां पर नबी ने कहा कि अगर खुदावंद मेरा मददगार ना होता तो मेरी जान कब की आल में खामोशी में जा, मैं कदों ना मर गया, कदों दा कबर च गया। और हमारी जिंदगी में आप सब जानते हैं, हमारी जिंदगी में बेशुमार ऐसे वक्त आए होंगे जब हमें लगा होगा कि बस अब हम नहीं, बस अब हमारी जिंदगी खत्म हो गई, लेकिन खुदावंद फिर मददगार के तौर पर नजर आया। तो मेरे अजीजों, जरूरत इस अमर की है कि आप खुदा को देखें। खुदा जो है जरूरी नहीं कि वो जाहिरी तौर पर आपके सामने खड़ा हो। खुदा जो है अपने कामों से आपकी बर वक्त मदद करने से नजर आता है। और मेरी और आपकी जिंदगी में बेशुमार ऐसे वाकयात होंगे जहां हम फिसले होंगे, जहां हम गुनाह की तरफ गए होंगे, जहां मौत की तरफ गए होंगे, जहां बीमारियों ने हम पर कब्जा किया होगा, जहां मुसीबतों और दुखों ने कब्जा किया होगा, जहां हमारे दुश्मन हम पर आ चढ़े होंगे, लेकिन खुदावंद उन तमाम हालतों में हमारा मददगार हुआ। और आगे जो लिखा है, जब मैंने कहा मेरा पांव फिसल चला तो ऐ खुदावंद तेरी शफकत ने मुझे यानी जब मैंने कहा खुदा बस मैं आते गया, बस अब मैं नहीं, तो खुदावंद की शफकत ने मुझे संभाल लिया, खुदा ने मुझे बचाया। और इसके जो रूहानी पहलू है वो यीशु मसीह की तरफ इशारा है। जिस्मानी तौर पर तो हमारी जिंदगी में बहुत से वाकयात में खुदा हमें चलता फिरता नजर आता है, लेकिन रूहानी तौर पर यीशु की तरफ इशारा है कि जब हम गुनाह के सबब से फिसल गए, मौत के कब्जा में चले गए, तो खुदा की शफकत ने, खुदा के जो फजल ने, खुदा की जो मोहब्बत है उसके बेटे के वसीला से उसने हमें बचा लिया। क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कि उसके नाम पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की। सो खुदावंद जब हमारे पांव फिसलने, और ये पांव का फिसलना जो है आज भी हमारी जिंदगी में होता है। बहुत बार हम गुनाह की लज्जत के लिए फिसल जाते हैं, बहुत बार हम जो है लालच में फिसल जाते हैं, बहुत बार हमारी आंखें जो है वो हमें गुनाह की तरफ माइल करती, बहुत बार हम बीमारियों के सबब से फंस जाते हैं, लेकिन खुदा की शफकत, खुदा की मेहरबानी, खुदा का फजल हमें बचा लेता है। क्योंकि याद रखिए, मैंने पहले ये सिखाया कि वाहिद खुदा एक ऐसा रिश्ता है जो हमें कभी नहीं भूलता। हम ही बेवफा होते। बाइबल कहती है कि खुदा कभी बेवफा, खुदा की जात में
में बेवफाई नहीं है। ये बेवफाई की जो इल्लत है ना, ये बेवफाई की जो ये कसर पैंदी है, सानू पैंदी है। हम ही खुदा से दूर हो जाते हैं, हम ही खुदा के नजदीक जरूरत के वक्त आ जाते हैं। खुदा और मैं मर चला हूं, मैं तेरे बगैर नहीं बचा सकता। खुदा वहीं खड़ा रहता है जहां हम उसे छोड़ के जाते हैं ना, खुदा वहीं खड़ा होता है, हमारा वेट कर रहा होता है, इंतजार कर कब मेरा बेटा मेरी बेटी मेरे पास लौट जाए। और याद रखिए, जितना कोई खुदा से दूर जाएगा ना, उतना ही दुख और मुसीबतें और परेशानियां और फिक्रें और हर तरह का गुनाह उस पर गालिब आता है। सो खुदा के नजदीक रहने में, खुदा के पास रहने में, खुदा की गोद में रहने में हमारी बरकत, हमारी बख्शिश, हमारी खुशहाली है। हमारी जो सुकून का ताल्लुक है वो इसी बात से कि हम खुदा के पास हैं। तो इसलिए मेरे अजीजों, बहुत बार जब हम गिरते भी हैं, गिरने लगते हैं, तो खुदा अपनी शफकत के बायस हमें बचा लेता। खुदा कभी हमें नहीं भूलता, खुदा कभी हमें नहीं छोड़ता। हम ही समझते हैं शायद खुदा दूर हो गए, नहीं, हम दूर हुए होते हैं। एक मिसाल मेरे ज़हन में आई, शायद आप इस बात को और आसानी से समझ जाएंगे। एक कोई शख्स था, उसको अक्सर ये ख्वाब आया करता था कि वो समुंदर के किनारे पर, रेत पर जा रहा है, साहिल समुंदर पर वो जा रहा है ऐसे। तो जब वो चंद कदम आगे जाता, 15-20 कदम, 50 कदम जब आगे जाता, तो वो पीछे मुड़कर जब देखता तो उसको अपने कदमों के अलावा किसी और के कदमों के निशान भी मिलते। तो उसको ये तसल्ली होती कि मेरा खुदा जो है वो मेरे साथ साथ है। एक दफा क्या हुआ कि उसे ख्वाब आया और वो उसी ख्वाब को देख रहा है, और वो जब आगे जाकर उसने मुड़कर देखा तो उसे सिर्फ एक पैरों के निशान नजर आए, एक शख्स के। जब एक शख्स के पैरों के निशान नजर आए तो ख्वाब जब उसके बाद वो उठा, बड़ा परेशान था कि आज मेरा खुदामंद मेरे साथ नहीं, आज मेरा खुदामंद जो है वो उसने शायद मुझे छोड़ दिया है। उसने खुदा से दुआ की, खुदा के जुर चुका, खुदा से कहा, खुदामंद आज जो मैंने ख्वाब देखा तो उसमें मैंने देखा कि तू मेरे साथ नहीं था, मैं अकेला ही चल रहा था। तो खुदामंद ने उसे, उसके दिल में इस बात को खोला। उसने कहा, मेरे बेटे, ये तेरे पांव के निशान नहीं है, ये मेरे पांव के निशान है। क्योंकि तू बीमार था, तू कमजोर था, तेरा पांव फिसला हुआ था, तो मैंने तुझे अपने हाथों में उठा लिया। तू नहीं चल सकता था, तू मेरे साथ चलने के काबिल नहीं था, तो मैंने तुझे अपने हाथों में। तो हमारा खुदा इतना हमसे प्यार करता है। तो इसलिए 19 आयत में लिखा है, जब मेरे दिल में फिक्रों की कसरत होती है तो तेरी तसल्ली मेरी जान को शाद करते। लिखा है, अपनी फिक्रें मुझ पर छोड़ दो, क्योंकि मुझे तुम्हारी काहे की फिक्र खाने की। यीशु ने कहा, वहां के परिंदों को देखो, ना बोते हैं, ना काटते, ना कोठियों में, तो भी तुम्हारा आसमानी बाप उन्हें देता तो बेत का दो, क्या तुम्हें ना देगा। काहे की फिक्र खाने की, काहे की पीने की, काहे की रहने की, खुदा सब कुछ मुहैया करने वाला है। और आज तक मैंने एकेडमी के अंदर बहुत सी गरीब फैमिलियों को भी देखा है, बहुत से खुशहाल खानदानों को भी देखा है, लेकिन किसी भी गरीब फैमिली को मैंने भूख से मरते हुए नहीं देखा। तो भूखा मार मार के तो मर गया, खुदा रोटी देता है। किसी को मैंने बेछत नहीं देखा। अगर कोई गुर्बत में गया भी है तो मैंने ये जो नोटिस किया, जो मैंने इसके पीछे तहकीक की, बंदे की अपनी नालायकियों की वजह से। बहुत बार खुदा में देता है, हम वो पैसा नशे में उड़ाते हैं। बहुत बार खुदा में देता है, हम वो पैसा गलत काम में उड़ा देते हैं, जुए में उड़ा देते हैं। और अकेडमी के अंदर बेशुमार ऐसे केसेस हैं कि नौजवान जुआ खेलते हैं, बुजुर्ग जुआ खेलते हैं, शराबों में, नशों में पैसा उड़ाया जाता है। खुदा मुहैया करता है, खुदा देता है, लेकिन हम उस पैसे को गलत राह में लगाते हैं और फिर गुर्बत को हम खुद अपने घर में दावत देते हैं। तो इसलिए किसी को मैंने मरते नहीं देखा। खुदा हमारी फिक्र फिर भी करता है। तो मैंने ये देखा कि हमारी गलती के सबब से गुर्बत है, खुदा की तरफ से नहीं है, खुदा को मुहैया करता है। लिखा, अपनी मुट्ठी खोलता और सबको। अगर इसके अलावा भी कोई फिक्र हमारे दिल में आएगी
तो याद रखिए खुदामंद हमारा खुदा मौजूद है। लिखा है जब फिक्रों की कसरत मेरे दिल में होगी ना तो क्या होगा, मेरे पास बहुत बड़ी तसल्ली है। मेरा खुदामंद जो है मेरे साथ मौजूद है और वो मुझे ये कहता है तू फिक्र ना कर क्योंकि मुझे तेरी। तो खुदावंद की तसल्ली जो है वो मुझे मेरी जान को शाद कर देगी। याद रखिए आप जब एक रास्ते पर जा रहे हो और आपके सर पर बहुत बड़ा बोझ है, आप उस बोझ के सबब से निढाल हैं, आप चल नहीं सकते। आपका एक दोस्त आकर कहता है ऐ मेरे दोस्त मुझे लगता है तू बहुत थक गया है, इसलिए अपना ये बोझ मुझे दे दे, मैं तो अपने सर पर उठा लेता हूं। तो उसके बाद क्या होगा, आपकी जान क्या हो जाएगी, शाद कि मेरा बोझ मेरी फिक्र किसी और ने। तो मेरे अजीजों खुदामंद आपकी जिंदगी में आपको बेशुमार बार नजर आया, क्योंकि हर मामले आप बीमारी भी आप पर आती है, दुख मुसीबत भी आती है और भी तकलीफें आ जाती हैं। खुदा हमें जब उन मुसीबतों और दुखों में संभालता और फिर से बहाल करता है तो खुदा अपने होने का सबूत देता है और हमें नजर आता है। वो अलग बात है कि हम फिर भूल जाएं, वो अलग बात है कि हम फिर जो है बेवफाई की चादर ओढ़ने, लेकिन खुदा कभी बेवफा नहीं। खुदा हमेशा हमारे साथ रहता है, खुदा हमेशा हमारी फिक्र करता है। इसलिए आज का जो पैगाम है इसका पूरी तौर पर मकसद ये है कि हम खुदा को अपनी जिंदगी में पहचानें, हम खुदा को अपनी जिंदगी में पहचानें। हमने उसे बहुत बार देखा है, उसके बावजूद भी जो है हमारे अंदर जो बेशुमार लापरवाहियां और बेशुमार खुदा से दूर भागना पाया जाता है, सो ये चीजें खत्म हों और हम खुदा को पूरे तौर पर पहचान कर सब बातों के लिए हमेशा उसकी शुक्रगुजारी करते हैं। जब कोई बहन भाई मददगार नहीं होगा, जब कोई रिश्तेदार मददगार नहीं होगा, जब तक अपने बच्चे भी मददगार नहीं हो, मैंने देखा है औलाद की नाफरमानी मैंने देखी है बेशुमार, माँ बाप के हक में नहीं पूछते, नहीं समझते, अपनी मन मर्जी करते हैं। जब कोई हमें संभालने वाला नहीं होगा, कोई हमारा मददगार नहीं होगा, तो खुदा हमारे लिए आन खड़ा। खुदा तुम मेरा मददगार न होता तो मैं कब का, मेरी जान कब की आल में खामोशी में जा बस, मैं कब का मर गया होता। दो हादसे मुझ पर गुजरे, तीसरा भी है लेकिन वो बताने का नहीं, लेकिन दो हादसे मुझ पर गुजरे। एक जब मुझे डेंगू का मसला हुआ तो मुझे ऐसा लगा, बल्कि इससे पहले भी एक बार मुझे पेट मेरा खराब हो गया, खून के पेचिश थे, तो मैं जब वॉशरूम जाता तो मुझे ऐसा लगता कि जैसे यहाँ पर मैं मर जाऊँ। खुदा ने मुझे बहाल किया। डेंगू का मसला हुआ तो डेंगू में मुझे ऐसे लग रहा था कि बस मेरी जिंदगी का एंड है। और तीसरी बीमारी, बड़ी बीमारी मेरी जिंदगी में अभी गुजरी क्रिसमस से पहले, और अभी भी मैं उसके लिए दवाई खा रहा हूँ, लेकिन खुदा की शुक्रगुजारी है कि खुदा ने फिर से मुझे, तो अगर खुदामंद मेरा मददगार ना होता तो मैं कब, मेरी जान कब की आल में खामोशी में जा बसी। यही आयत आप सबकी जिंदगी में भी है, और खुदा आपकी जिंदगी में कई बीमारियों में, कई परेशानियों में, कई दुखों में, कई मुसीबतों में, और जब शरीर आपके मुखालिफ खड़े हो, जब आपके दुश्मन आपके मुखालिफ खड़े हो, जब आप मुसीबत में हो, तो खुदा आपको वहां पर चलता फिरता आपके साथ नजर आएगा। सो जब खुदा आपकी जिंदगी के सब हिस्सों में आपको नजर आया, आपको दिखाई दिया, आपका मददगार हुआ, तो क्या आपका फर्ज नहीं बनता कि आप उसकी शुक्रगुजारी। बेशुमार बार आपके पांव फिसले होंगे, मेरे भी फिसल जाए, लेकिन खुदावंद की शफकत फिर मुझे संभाल ली। खुदावंद फिर मुझे जो है ना कहता, नहीं मेरे बेटे तू मेरा है, तूने अपनी राह सीधी रखनी है, तूने अपनी आंख को दुरुस्त रखना है, तूने अपने दिल को साफ रखना है। खुदावंद हमारा मददगार है। और आज भी मेरे अजीजों हम सब जो है अपनी जिंदगी में खुदा के साथ जुड़े हर तजर्बे को महसूस कर सकते हैं, और लिखा है तजर्बे से मालूम करो कि खुदा की क्या मर्जी है। तो तजर्बा हर रोज का है। मैं सो जाता हूं, मुझे नहीं खबर मैं उठूंगा, खुदा एक नया दिन हर रोज मुझे बख्शता है, और मैंने अपनी जिंदगी को कभी एक दिन से ज्यादा नहीं देखा। मेरी जिंदगी एक दिन के लिए है, अगला दिन मुझे नहीं पता आएगा कि नहीं। तो इसलिए इस बात को समझ ले कि खुदा हर रोज हमें चलता फिरता हमारी जिंदगी में नजर आता है,
اور جہاں سے نئی امید ہوتی خدا وہاں سے بھی مہیا کر دیتا ہے. خدا ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے. خدا جو ہے بے شمار مسائل میں ہمارے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اور وقتی طور پر ایسا لگ رہا ہے کہ اس مسئلے میں تو بس سب کچھ غرق ہو جائے گا, لیکن ایٹ دا اینڈ جو ہوتا ہے وہ مسئلہ ایسا حل ہو جاتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید کچھ ہوا ہی نہیں. تو میرے عزیزو, اپنی زندگی میں خدا کے ہونے کو پہچانیں. اگر خدا میرا اور آپ کا مددگار نہ ہو تو موت ہمارے لیے قدم قدم پر دری ہے. اس موٹر سائیکل پر ہم جو ہے وہ سیر کرتے پھرتے ہیں نا, وہی ہماری موت بن جاتی ہے. سو موت قدم قدم پر دری ہے. جس چھت کے نیچے ہم بڑے آرام سے فخر کرتے ہیں کہ یہ گھر ہمارا پکا گھر ہے, وہی چھت پر آ گرتا ہے اگر خدا ہمارا مددگار ہے. تو یہ سب کچھ اس کا فضل اور رحم اور ترس ہے, اور اس کے بغیر, اس کی شفقت کے بغیر ہم کچھ نہیں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم سب باتوں میں ہمیشہ اس کی شکر گزار. مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے آئیے